क्लियर है? The concentration of a solution can be expressed in different ways. Let us learn more about different ways of expressing concentration of solutions. The concentration of a solution in terms of mass percentage is the... ये स्क्रीन से जो आप लोगों ने खींचा है, कौन बच्चा खींचा है, प्लीज उसको हटा लो. of solute per 100 grams of solution expressed as a percentage. For example, 10 grams of sodium chloride in 90 grams of water is a 10% weight by weight sodium chloride solution. Sometimes both the components of a solution are in the liquid state. In that case, the concentration of their solution is expressed by volume percentage. For example, 60% solution of methanol in water is 100 milliliters of solution with 60 milliliters of methanol. The mass to volume percentage is the amount of solute in grams dissolved in 100 ml of the total solution. For example, 30% solution of sodium chloride means 30 grams of sodium chloride are present in 100 milliliters of solution. Molarity is defined as the number of moles of solute dissolved per liter of solution. If the strength of the solution in grams per liter is known, then we can calculate molarity by dividing strength by molecular weight of solute. Molality can be defined as number of moles of solute dissolved in 1000 grams of solvent. In other terms, molality is the number of millimoles of solute dissolved in grams of solvent. If 1 mole of calcium carbonate, that is 100 grams, is dissolved in 1 liter of water, the solution will be 1 molar. If 1 mole of a solute is dissolved in 1 kilogram of water, this solution will have a strength of 1 molal. The only difference between molarity and molality is the measure of the solvent. Molarity is moles of solute in 1 liter of solvent, and molality is moles of solute in 1 kilogram of solvent. The ratio of molarity and molality gives the ratio of the mass of the solvent in kilograms to the volume of the solution in liters. ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? और ये तो रिवीजन पर्पस से मैं यहाँ चला रहा हूँ. इसके बाद आप लोग से न्यूमेरिकल पूछेंगे, आप लोग तैयार रहिएगा. Normality of a known solution is generally used in titration calculations to find out the strength of another solution. अच्छा, ये देख लीजिए, टाइट्रेशन करने का इंस्ट्रूमेंट है. आप लोग 12th में प्रैक्टिकल वर्क इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे. इसको बोलते हैं ब्यूरेट. नीचे कोनिकल फ्लास्क, ये स्टैंड है, और स्टॉप कॉक है. इसको आप यदि रोटेट करेंगे तो आपका सॉल्यूशन ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में जाएगा, और इसको क्लोज कर देंगे तो बंद हो जाएगा. ये टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का सेटअप है. नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नॉर्मेलिटी और मोलिटी में क्या रिलेशनशिप है, ये भी आगे क्लियर हो जाएगा. Normality is the number of gram equivalents of solute dissolved in 1 liter of solution. For example, 1 normal solution of hydrochloric acid is 36.5 kilograms of hydrochloric acid in 1 liter of solution. Equivalent mass of any compound is the molecular mass which displaces 1 part of hydrogen, 8 parts of oxygen, and 35.5 parts of chlorine.
In the case of sulfuric acid, equivalent mass will be half, as it has 2 hydrogen atoms instead of 1. The product of molarity and molecular mass is equal to the product of normality mass, which displaces 1 part of hydrogen, 8 parts of oxygen, and 35.5 parts of chlorine. In the case of देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 क्या होगा? H2SO4 में 2H प्लस आयन है, ठीक है, मतलब वो 2 बेस को 1 मोल H2SO4 2 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। इसीलिए जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है उसके डिवाइड बाय नंबर आप प्रोटॉन को करेंगे जो कि 2 है, यानी इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? 49 ग्राम। इक्विवेलेंट मास पर लीटर वॉल्यूम को हम बोलेंगे नॉर्मेलिटी। क्लियर है सबको? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो आस्क कर सकता है या रेज हैंड कर सकता है। sulfuric acid equivalent mass will be half, as it has 2 hydrogen atoms instead of 1. The product of molarity and molecular mass is equal to the product of normality and equivalent mass. A mole fraction is the ratio of the number of moles of one component to the total number of moles of all components of solute in the solution. Let's take a binary solution, a solution with 2 components. The total mole fraction of all the components or substances in the solution is 1. Here is how the relation between the mole fraction and molality of a solution is expressed. Parts per million, or ppm, is used to measure concentration when the solute is in trace quantities. It is defined as the ratio of the number of parts of the solute component to the total number of parts of all the components present in solution multiplied with 1 million. Concentration in parts per million can be expressed as mass to mass, volume to volume, and mass to volume. ppm is used to express air and water pollution levels in city. ठीक है, पीपीएम आप लोग को समझ में आ गया। ये रिवीजन क्लासेस है आप लोग का एक तरह से, जो आप लोग देख चुके हो, जस्ट आप लोग क्या कर रहे हो? रिवाइज कर रहे हो। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, किसी को क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है। A solution of concentrated hydrochloric acid is 44% weight by weight and density of solution is 1.2 grams per milliliters. Which of the following is the correct molarity and molality of HCl? आप लोग इसको सॉल्व करिए क्वेश्चन को। चंदन, साक्षी, आप लोग सॉल्व करके देखो सॉल्व हो रहा है कि नहीं, आंसर बताओ। ठीक है, पिंकी, ये आप लोग को डाटा दे दिया हुआ है। ए सोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 44%। क्या है? मास बाई मास है। एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मोलरिटी एंड मोलरिटी? पहले आप मोलरिटी निकालो फिर मोलरिटी निकालना। 44% हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है, मास बाई मास, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 44 ग्राम HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड 100 में से 44 घटा दो कितना आ जाएगा? 56 ग्राम आपका वाटर है। तो 44 ग्राम आप HCl का आप लोग क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और फिर उससे मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करिए आप लोग, रिप्लाई करो। कौन कौन कोशिश कर रहा है? चंदन जायसवाल कोशिश करो बेटा। चंदन रिप्लाई। साक्षी। हाँ सर। एंड पिंकी। हाँ चंदन, सॉल्व कर रहे हो तुम? हाँ सर।
चलो मैं इसका सोल्यूशन आप लोग को बता रहा हूँ फिर। The solution has a molarity of 14.4 molar and 21.4 molars of molality. देखो ये कैसे सॉल्व किया है। 44 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है, सोल्यूशन है 44 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 56 ग्राम ऑफ वाटर इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मान लो। डेंसिटी ऑफ HCl सोल्यूशन दिया 1.2 ग्राम पर ml। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या होगा, 44 डिवाइडेड बाय 36.5। 36.5 क्या है आपका, 36.5 आपका है मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, जिसको मोलर मास बोलते हैं। आप देखोगे कि आपका HCl कितना आ गया, 1.2 मोल। तो वेट ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन कितना है, 56 ग्राम है। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी भी आपको दे रखा है 1.2 और ये 56 है। तो आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर। लीटर ऑफ, हाँ क्लियर है, लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 1.2 मल्टीप्लाई 1000। मतलब जो भी आएगा इस कैलकुलेशन के बाद वो क्या होगा आपका, एक्चुअली में ml में होगा, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। तो आपको कितना लीटर आ गया, 0.83 लीटर। क्लियर है, 0.83 लीटर आ गया। अब क्या होगा, जो मोलरिटी है आपका, मोलरिटी ठीक है 1.2 ग्राम है, और वॉल्यूम क्या होगा लीटर में, कितना हो जाएगा 14.45 मोलरिटी हो जाएगा। और मोलरिटी निकालने के लिए क्या है, मोल आपको पता है, लेकिन हमको वेट ऑफ वाटर किसमें चाहिए, केजी में चाहिए। इसमें चाहिए केजी में, या 56 ग्राम है, इसको केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ये केजी हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, केजी। क्लियर। तो 1.2 मल्टीप्लाई 0.056 करेंगे तो कितना 21.42 क्या हो जाएगा आपका, मोलर। क्लियर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14.4 एंड 14.4 मोलरिटी एंड 21.4 क्या होगा, मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the correct normality of a 2.5 molar sulfuric acid solution? अब ये देखिए आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्मेलिटी ऑफ अ 2.5 सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। क्लियर। तो 2.5 जो है सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन है, इसका नॉर्मेलिटी क्या होगा, आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का नॉर्मेलिटी मोलरिटी का क्या रिलेशनशिप है, मल्टीप्लाई 2, यानी यदि 2.5 आपका मोलरिटी है तो नॉर्मल क्या होगा, जस्ट डबल 5 मोलर। इसका आप आंसर देख सकते हैं। The solution has a molarity of 14.4 molar and 21.4 molars of molality. देखिए आपको नॉर्मेलिटी पता है, तो मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, ये हमेशा बराबर होता है। ये आपका बेसिक एक फार्मूला है, ठीक है। मोलरिटी आपको 2.5 और मॉलिक्यूलर मास पता है 98, लेकिन इक्विवेलेंट मास क्या होता है, 98 का जस्ट हाफ होता है 49, और मोलरिटी आपको पता नहीं है, यानी क्या हो जाएगा 49 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 98 से, और क्या हो जाएगा आंसर ओवरऑल 5 नंबर, मतलब जस्ट डबल हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Let's recap what we have learned so far. ये देखिए पूरा फार्मूला का एक समरी फॉर्म है। क्लियर है, सभी फार्मूलों का क्या ये समरी फॉर्म है, आप लोगों को उसको नोट करके लर्न कर लेना है। आप लोग ये देखिए, Molarity of a solution. Molarity and molality are units used for quantifying the concentration of a solution and are based on the mole.
In this session, we'll concentrate on learning how to calculate molarity. 1 mole is the amount of a substance that contains 6.023 multiplied by 10 to the power 23 entities of that substance. For example, 1 mole of carbon will contain 6.023 multiplied by 10 to the power 23 atoms of carbon. 1 mole of carbon dioxide will contain 6.023 multiplied by 10 to the power 23 molecules of carbon dioxide. And 1 mole of sodium chloride will contain 6.023 multiplied by 10 to the power 23 ions of sodium chloride. Molarity is defined as the number of moles of a solute in 1 liter of a solution. For example, a 0.20 molar NaCl solution will contain 0.20 moles of sodium chloride in every liter of the solution. Consider a solution composed of 10 grams of sodium hydroxide in 200 ml of water. Let's see how to calculate its molarity. First, we need to calculate the number of moles of solute, which is sodium hydroxide, that are present in the solution. The atomic mass of sodium is 23, of oxygen it is 16, and of hydrogen it is 1. Adding up the 3 atomic masses will give us the atomic mass of our compound, which will be 40. We already know that there are 10 grams of sodium hydroxide in the solution. The number of moles of sodium hydroxide in our solution can be derived using the equation. 10 multiplied by 1 mole of sodium hydroxide divided by 40, which gives us 0.25 moles of sodium hydroxide. Next, we need to calculate the number of liters of the solution. We already know that we have 200 ml of solution, but we need it in terms of liters. So 200 multiplied by 1 liter of water divided by 1000 ml will give us 0.20 liters of the solution. Finally, we have to divide the number of moles of solute by the number of liters of solution. In our example, the number of moles of solute is 0.25 and the number of liters of solution is 0.20. 0.25 divided by 0.20 will be 1.25. From this, we know that the molarity of sodium hydroxide in water will be 1. क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं? आपको 10 ग्राम क्या दिया हुआ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास 200 ml वाटर, आप यहाँ बीकर में देख सकते हैं 200 ml मार्क तक क्या है, वाटर है। तो इसकी मोलरिटी पूछा है, पहले 10 ग्राम का हम क्या निकालेंगे, मोल। तो 10/40 मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 0.25 मोल होगा। लेकिन वॉल्यूम में लीटर होता है, यहाँ 200 ml है, इसको सेपरेटली लीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया किससे, 1000 ml से। ml कट गया, बच्चा लीटर, 0.2 लीटर हो गया। अब आपको पता है सॉल्यूट और लीटर वॉल्यूम, ये लीटर है, ये मोल है, क्लियर। तो आपका ये क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो तो आपको क्या आ जाएगा आंसर, मोलरिटी 1.25. From this, we know that the molarity of sodium hydroxide in our solution would be 1.25 moles per liter. Summary. Molarity is defined as the number of moles of a solute in 1 liter of solution. The steps for calculating a solute's molarity are: calculate the number of moles of solute, calculate the number of liters of the solution, divide the number of moles of solute by the number of liters of solution. चलिए लास्ट 7 मिनट्स है, आप लोगों के लिए क्विज है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़िए, एन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, एन एक्सट्रीमली
an extremely small quantity of environmentally toxic substance was found in a river water sample. What could be the best way to express its concentration? इसका आंसर कौन दे सकता है? चंदन, सौरभ, reply fast anybody? साक्षी, इसका आंसर किसी के पास है? देखो मैंने बताया था कि जब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हो, ट्रेसेस में अमाउंट हो, तो हम क्या करते हैं? पीपीएम देखते हैं, पार्ट पर पीपीएम सर। मिलियन। क्लियर? हमारा क्या आंसर हो जाएगा? पीपीएम। इसको सबमिट करके देखते हैं। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 molar solution is formed when half mole of a solute is dissolved in. देखो 1 molar solution is formed when half mole of solution is dissolved in. कह रहा है कि हाफ मोल सोल्यूशन है, आपको 1 molar सोल्यूशन बनाना है, मोलेरिटी बनाना है, नॉट मोलेरिटी। तो क्या होगा इसका आंसर? मोलर का क्या कॉन्सेप्ट है? 1 मोल डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, हाफ मोल है यानी हाफ केजी, डिवाइड करेंगे तब जाके 1 मोलर बनेगा। तो हाफ केजी मतलब क्या? 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये होना चाहिए आंसर। ये करेक्ट। क्लियर? Which of the following unit depends on the molecular weight of the solute? देखिए W/W है, यूनिट लेस है, W/V आल्सो यूनिट लेस, ppm। तो कौन डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूलर वेट पे? सिंपल सा मोलेरिटी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोल डेसीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ। डेसीमीटर क्यूब क्या होता है? लीटर होता है। तो मोल पर लीटर किसकी यूनिट है? या -3 है, समझ लो, यानी माइनस में लीटर है। तो मोल पर लीटर किसका होता है? मोलेरिटी का होता है। सबमिट करिए। दैट्स करेक्ट। आप लोग आंसर कीजिए, कोई एक आंसर करना चाहता भी है? इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन। 1 liter ऑफ सॉल्यूशन में हम 1 मोल डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसका भी आंसर मोलेरिटी ही होगा। इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन। अगेन मोलेरिटी। लास्ट क्वेश्चन मे बी। इज द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट लेस क्वांटिटी। इसका आंसर आप लोग दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षी सर ये मोलैरिटी होगा ना? सौरभ, मोलैरिटी होगा ना सर? चंदन, इतने ही बच्चे हो? मोलेरिटी सर। फास्ट एनीबॉडी? दिस मोलेरिटी ऑप्शन सी है। दैट्स वेरी सिंपल। ऑप्शन सी सर। आवाज आ रही है ना बच्चों? हाँ सर। हाँ बोलो साक्षी। सर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सर, मोलेरिटी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन होता है? आप सोचोगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन होगा? मोलेरिटी की मोलेरिटी? बताया गया था मोलेरिटी सर। होता है। क्यों डिपेंडेंट होता है? क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं होता। एक एस्पेक्ट होगा मोलेरिटी, लेकिन यूनिट लेस क्वांटिटी बोल रहा है। क्या मोलेरिटी यूनिट लेस क्वांटिटी है? मोलेरिटी यूनिट लेस क्वांटिटी नहीं है, उसका यूनिट होता है। मोलर खुद अपने आप में यूनिट है। फिर क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी सर। क्लियर? क्यों? ऑप्शन मोल है, मास है। क्योंकि टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, यूनिट में नहीं होता, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल बाई मोल होता है, कट जाता है। सर ऑप्शन डी हो जाता है। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या हो गया आप लोगों को? ऑप्शन डी सर। समझ में आ गया? ऑप्शन डी सर, चेक कीजिए सर। लास्ट 2 मिनट्स है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? बोलो। ऑप्शन डी नहीं हो सकता कॉन्सेप्ट मैप ऑफ क्या है इसको? सर ऑप्शन डी नहीं हो सकता। आप ये देख सकते हो, सॉल्यूट सॉल्वेट एग्जांपल क्या? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन गया। यहाँ पे क्या? मोलेरिटी मोलेरिटी, ये क्या? सॉल्यूशन इन क्वांटिफाइड, क्वांटिटी कितनी है वो बता रहा है एग्जैक्टली।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल। और मोल क्या होता है? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 इंटिटीज ऑफ सब्सटेंस क्या 1 मोल होता है। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लीटर ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका क्या होगा? मोलरिटी। 1 मोलर सॉल्यूशन का 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस क्या? 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर ये हो गया। सर तो आप लोग और देख लो। सर नंबर ऑफ लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स, क्या करना है भाई आपको? ये क्विज है। ड्रॉप हेयर, ड्रॉप हेयर, नंबर ऑफ लीटर्स, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा मोलरिटी आपको बताना है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेगा और नंबर ऑफ लीटर क्या रहेगा? नीचे रहेगा। क्लियर? ड्रैग द टेबल, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ मोलरिटी। चलो ये हो गया। लास्ट 1 मिनट, आप लोग रिकॉल कर सको सबको। यहाँ पे आ जाओ। देखो मोलरिटी, मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डिफिनेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। लास्ट 1 मिनट किसी कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकता है, नहीं तो मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ ध्यान देना है क्या? पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। मोल क्या होता है? A substance has 6.023 multiplied 10⁻23 entities of the substance is said to be 1 mole. Solute क्या है आपका? A substance that get dissolved in a solution is called solute. Solvent क्या है? A substance that dissolve in solute is called solvent. और जिसकी क्वांटिटी क्या हो? ज्यादा होती हो। सोल्यूशन का क्या डिफिनेशन है भाई? Mixture of 2 or more substance is called homogeneous. Mixture of 2 or more substance in homogeneous manner. Homogeneous mixture of 2 or more substance is called solution. ये हो गया आप लोगों का क्विक रिवीजन। टाटा क्लास।